Hello viewers, I am Deepti. Now I am going to solve ICSE Class 10 Mathematics Paper 2026 Section B. Starting with question number 4. Here you have to choose only 4 questions, but I have to solve all the questions. So I need some time. So starting with question number 4, which is a very simple identity question. Sec theta minus cos theta, and then next is cosec theta minus sin theta. I am taking only left hand side. So sec you can write 1 upon cos minus cos theta, and cosec reciprocal relation sin theta minus sin theta. LCM cos theta 1 minus cos square theta, LCM sin theta 1 minus sin square theta. So now identity, first identity 1 minus cos square theta means sin square theta, and here it will become cos square theta. In the denominator sin theta and cos theta are already there, so square should get cancelled and you will get sin theta cos theta, which is our right hand side, hence proved. This was the first part. Now coming to second part. So in the second, the cost price of TV is this much, 20,000. The shopkeeper marked it as itna. So marked price will become 24,000. He sells it to a customer at a discount of 10%. So discount is equal to 10%, and discount वैसे भी on the marked price ही है 24,000. It means 10 upon 100 means 10% means 24,000 है, तो 10 upon 100 means आपके पास 2400 आ जाएगा. So it will become 2400. So now 2400 का कैलकुलेशन करना पड़ेगा. So 2400 एंड डिस्काउंट हो गया. डिस्काउंटेड प्राइस विल बी, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो डिस्काउंटेड प्राइस टोटल हमें माइनस करना पड़ेगा. डिस्काउंटेड प्राइस विल बिकम 24,000 एंड माइनस दिस 2400. So it will become 6 and 1216. This is the discounted price, क्योंकि सिर्फ वो थोड़ी बोला है डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ द टीवी सेट कम किया गया है 2400, बट अब उसको इतना पे करना है. सो अमाउंट पेड बाय द कस्टमर. सो अमाउंट पेड में आपको ये भी देना है जो डिस्काउंटेड प्राइस आया. अमाउंट पेड इज इक्वल टू दिस प्लस इसके अंदर आपका आएगा जीएसटी कितना है 12% ऑफ जो आपका अब न्यू प्राइस आया है इस पर. सो 12% ऑफ दिस विल बिकम, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन है इसमें. सो इट विल बिकम 216 into 12. So 6 2 is 12, 2 1 2 3 and 2 2 4 and 1 में आ गया 216. It will become 6 7 8 9 5 2 2 5 9 2. So ये आपका आया है अभी 12%. तो 12% को अब इसमें आप ऐड करेंगे, टोटल अमाउंट तब आएगा 21600 एंड देन 2592 जो आप जीएसटी पे कर रहे हैं. सो इट विल बिकम 11 2 3 and 4. So this much. So 24,192 is the total amount paid by the customer to clear the bill. आप कैलकुलेशन को भी क्रॉस चेक भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने रफली ही कैलकुलेट किया है यहाँ पे भी. So now next, coming to next question, similarity. So similarity triangle is given, और जैसा मैंने आपको अपनी वीडियोस में भी बताया है कि आपका AA axiom ही लगता है. तो here also we have to apply AA axiom. ADE है, this is BC, these two sides are parallel and ratio of AD to DB is given as 2:3. So we will write 2x and 3x. So prove that ADE and सबसे पहले triangle ADE and triangle ADE and ABC means complete पूरा वाला लेना है आपको. So proof करना है. तो proof करने के लिए ADE means ये हो गया और पूरा ऊपर. तो corresponding angle आप you can write angle ADE is equal to angle ABC. क्या है यहाँ पे ये corresponding angle, and then angle A is equal to angle A यानी common. तो आपका AA axiom से दोनों triangle यानी ADE is similar to triangle ABC ये आपका आ जाएगा. AA axiom से ही प्रूव हो रहा है. Now hence find DE upon BC. तो जो हमारे को पता है, कौन सी पता है, AD लिया हमने पूरी AB, we have to take AD upon AB and then DE upon
BC। आप चाहो तो 1 प्लस करके भी निकाल सकते हो, बट अभी के लिए मैं ऐसे कैलकुलेट कर रही हूँ। AD इज 2 अपॉन AB, टोटल इज 2 + 3, इट मीन्स 5। तो DE और इसका रेशियो जो हमसे पूछा गया है, DE एंड BC रेशियो इज 2:5। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड हमने प्रूफ करना है, ये वाला ट्रायंगल हमें यहाँ से ऐसे भी मीट करवाना है। नाउ वी हैव टू टेक दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल and they are meeting at point F. So now we will take for B part in triangle DFE and triangle CFB. So here you can see these two lines are parallel, DE this, so this angle and this angle will become same. So it means angle DEF is equal to angle FBC. क्या है ये? Alternate interior angle. And also vertically opposite angle. So DFE is equal to DFE, then CFB क्या आ गई ये? Vertically opposite angle. So again AA axiom से these two triangles will become similar. Triangle DFE is similar to triangle CFB again by AA axiom. Now given that the area of DFE, तो एरिया के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी हमने प्रूफ किया मींस ये, तो आपको पता ही है एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस, एंड यू हैव टू फाइंड जो दूसरा वाला है CFB. नाउ दिस एरिया इज गिवन एज 16 स्क्वायर यूनिट, दिस वी डोंट नो, बट हमें एक रूल पता है कि एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, तो मींस 16 अपॉन x, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इसी ट्रायंगल की आपके पास DE और BC भी है. DE and BC are the corresponding side, तो उनका स्क्वायर यानी DE और BC का रेशियो हमने 2/5 निकाला, तो इट विल बिकम 4/25. सो हियर x इज इक्वल टू 16 into 25 upon 4. It means 4 4 16, 25 4 means 100. 100 square unit is the area of whatever is asked and triangle CFB जो डिनोमिनेटर में हमने लिया है. Now coming to question number 5, which is a histogram question. Already histogram is given. मैंने आपको कल जो क्रैश कोर्स में क्लास करवाया था, यहाँ जो मैंने डाउट सेशन लिया था उसमें भी हमने ऐसा सेम क्वेश्चन कवर किया था कि हिस्टोग्राम है, ऑलरेडी गिवन है और उसमें से हमें डाटा निकालना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग द ग्राफ आंसर द फॉलोइंग. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट इज 150 सेंटीमीटर. तो 150 सेंटीमीटर से ऊपर मीन्स हमारी ये वाली भी आएगी और ये वाली भी आएगी. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम इसमें कैसे लेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू हाइट अबव 150 प्लस हाइट अबव जो भी हमारा दूसरा आ रहा है 150 to 160 एंड देन अबव 160 दोनों लेना है. तो हाइट अबव 150, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इट इज लाइंग बिटवीन 8 and 10, इट मींस 9. So 9 students are there and height above in between 160 and 170 is 4. So it means total 13 students who have height more than above, मतलब हम लिखेंगे above 150 centimeter. Now what is the model height? तो model height तो you can easily see कि model height कितनी है. maximum बार जो सबसे बड़ी लेंथ की है it is this and इसके corresponding है 14. और model height हमने नीचे से रीड करनी है, तो ये आ गया आपका 132, 140 और हाइट इज गिवन इन सेंटीमीटर में ही है. वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था, यहाँ पर मॉडल हाइट है. नाउ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हमें सारी फ्रीक्वेंसीज ऐड करनी है. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ध्यान से ऐड करेंगे कितनी कितनी कॉरेस्पॉन्ड हो रही है. वैसे तो आपको पूरा टेबल बनाना चाहिए कि यहाँ पर एक तो किंग हो गया, फिर 100 से 110 में 6 स्टूडेंट्स आर देयर, बट यहाँ हमें इतना टाइम नहीं है. 100 to 110 ऐसे करके टोटल आपके पास जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 हैं, ऐसे सिमिलरली आप सबका लिखोगे 110 to 120 मीन्स आपका यहाँ पर आ रहा है 9. देन नेक्स्ट इज नहीं 110 to 120 में आपका आ रहा था 2. देन नेक्स्ट इज आपका 9. देन नेक्स्ट इज 14. देन नेक्स्ट इज 12 and next is again 9 and last is 4. So when you add all these numbers you will get, इसमें आपके पास प्लस करने के बाद जो आंसर आना है, तो आई थिंक ये नंबर हमारे पास आ रहा है 56. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस डाटा इज 56. So now I'm coming to coordinate geometry.
सो फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट दिए हैं हमें, ए बी इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट पी। वैसे तो हमें पता है कि पॉइंट एक नेगेटिव है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, बट हम सिंप्लिसिटी के लिए इसको नॉर्मल बना रहे हैं, -10, -2 एंड बी पॉइंट कोऑर्डिनेट्स आर गिवन एज 2 and 10, two end points A and B. So now AB intersect the x-axis at P. So suppose this is the x-axis, this point is P. तो P के coordinates क्या हो जाएंगे on x-axis? A का ही point होगा, let it be A only, and Y का point 0 हो जाएगा. And ratio we can assume as K is to 1. So अब अपना यहाँ पर आप section formula लगाइए, ratio in which P divides. तो पहले हमने कर लिया कि let the ratio will be K is to 1. अब इसको करेंगे आप, और हम Y के लिए करेंगे क्योंकि Y का आंसर 0 तो it will be easily come. 10K हमारा y पॉइंट निकल रहा है 10k, और इधर से 1 के साथ लेंगे तो -2 अपॉन k प्लस 1 एंड इट इज इक्वल टू 0. इट मीन्स 10k इज इक्वल टू 2, तो k इज इक्वल टू 2/10 मीन्स 1/5. तो रेशियो इज 1:5. दिस इज आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट. नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ p के लिए हम x कोऑर्डिनेट लेंगे, तो x कोऑर्डिनेट k मीन्स आपका आ रहा है 2k, एंड देन इधर लेंगे तो -10 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू a जो हमारा पॉइंट बनाएगा, बट हमें k की वैल्यू भी पता है, k की वैल्यू इज 1/5, तो वी हैव टू पुट इट ऑल्सो. सो इट विल बिकम 1.5 प्लस 1, सो इट विल 2/5 -10 अपॉन डिनोमिनेटर में 5, 1 प्लस 5, तो इट विल बिकम 2 - 50 अपॉन 5, और रेसिप्रोकल कर देंगे तो 5 अपॉन 6, तो 5 will get cancelled, it will become -48 upon 6, तो 6 7 48 means -7. बट कोऑर्डिनेट ऐसे नहीं छोड़ना, अवर कोऑर्डिनेट P is -7, 0, 6 8s are 48, okay sorry, 6 8 is 48, it will become -8 and 0, 48 ही आएगा, हाँ सॉरी, -8 and 0 are the coordinates of this point. So P के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए -8 and 0. Now coming to next question, solve the quadratic equation x -2 whole square minus 5x minus 3 equal to 0. First simplify this algebraic expression, x square plus 4 minus 2x minus 5x minus 3 equal to 0. It will become x square minus 9x plus 1 equal to 0. तो अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो आपका d का पॉइंट इसके अंदर क्या बन जाएगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट विल बिकम 9 स्क्वायर 81 माइनस 4 मीन 77. तो अंडर रूट d की वैल्यू हम 77, आपको स्क्वायर टेबल मिला होगा, स्क्वायर रूट टेबल में इफ वी गेट इट चेक, तो आपको पता है ये 77 है, तो 8864 से बड़ा, यानी 8 पॉइंट में ही आपने देखना है, 8.775 इज इट्स एग्जैक्ट वैल्यू. सो द x वैल्यूज आर -b, तो -b मींस +9 हो जाएगा, प्लस माइनस वी विल टेक दिस वैल्यू 8.775 एंड डिवाइडेड बाय 2. इट मींस दो आंसर आने वाले हैं, 9 + 8.775, सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आपको आंसर देना है, and next is 9 minus 8.775 divided by 2. So when we add them, 8 and 16 and 17, 17.775 divided by 2, and next is 0.225 divided by 2. So your answer will become 8.887, and here it will become 0.1125. Now significant digits, 3 significant figures में आपको आंसर देना है, तो it will become 0.08 और 89, क्योंकि सिग्निफिकेंट में हम डेसिमल के लेफ्ट वाली तो काउंट नहीं करेंगे, तो इट विल बिकम 0. यहाँ पर 8 पॉइंट है ना, तो 8.8 एंड 87 को राउंड फिगर करेंगे, तो इट विल बिकम 8.89, एंड नेक्स्ट इज 0.11 है, तो इसमें काउंट होगा ये भी, तो 0.11 बट 25 की जगह पे 3, तो 8.89 एंड 0.113 इज द फाइनल आंसर. 8.89 एंड 0.113 is the final answer. So our question number 6 is Kabir bought 120 shares of a company. It means N is given as 120 with a nominal value, means face value is given as rupees 100, available at a premium of rupees 25. So market value will be addition of these two, it means 125 rupees. Find the money invested by Kabir in buying these shares. तो
तो मीन्स मनी इन्वेस्टमेंट, इट मीन्स आपने कितने नंबर ऑफ शेयर खरीदे हैं और कितनी मार्केट वैल्यू पे खरीदे हैं। तो मार्केट वैल्यू इज 125 एंड नंबर ऑफ शेयर इज 120। तो टोटल इन्वेस्टमेंट बाय हिम इज 15,000 rupees. So rupees 15,000 is the total money invested by Kabir. Now for B part, this was A part. Now B part, rate of dividend if received rupees 1080 as dividend. So dividend का formula you know, dividend is equal to, मैंने अपने वीडियो में बार बार बोला हुआ है, NRF upon 100. So N is 120. रेट ऑफ डिविडेंड हमें बताना है, तो अब रेट को हम डिविडेंड को डी ले लेते हैं, इनटू एफ इज फेस वैल्यू अपॉन 100 एंड वी ये कैंसिल हो जाएगा एंड डिविडेंड दे हैव गिवन अस 1080, सो डिवाइडेड बाय 120 इज द रेट ऑफ डिविडेंड। तो कितना आ जाएगा 9%, सो इट विल बिकम 9% डिविडेंड। नाउ नेक्स्ट इज हिज रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न के लिए आपको फॉर्मूला पहले से ही पता है, रिटर्न परसेंट हमेशा मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, डिविडेड परसेंट ऑन फेस वैल्यू पे होता है। तो रिटर्न हमें नहीं पता, तो रिटर्न अपॉन 100 है, इनटू मार्केट वैल्यू इज 125 इज इक्वल टू डिविडेंड हमने जस्ट अभी निकाला है 9% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हमारे पास है 100, सो यहाँ से रेट आ जाएगा 9 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, 25 4, 25 5, नहीं 5 नहीं कटेगा, 90, दिस विल बिकम 9 4 36 by 5. तो 36 by 5 means 7.2% is the rate of return. So this was our question number 6, part 1. Now next is find the mean of the following frequency distribution using step deviation method. So now step deviation method में, और इसमें main change क्या है कि they have told us to take the assumed mean as 28 only. So class interval 0 to 8, 8 to 16 continuous data ही आया है as usual. तो कुछ भी आपके लिए ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं दिया गया, एक दो क्वेश्चन छोड़कर बाकी सब हमारे लिए अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं। 32, 32 to 40 and 40 to 48. This is the class interval. Now frequency is given as 10, 20, 14, 16, 18 and then 22। और अगर हमने इसको सम किया है तो इसका सिग्मा एफ निकल जाएगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, क्लास मार्क मीन्स मिड वैल्यू। सो मिड वैल्यू हियर इट इज 4 और 8 का डिफरेंस है, तो इट विल बिकम 12 एंड देन हियर इट इज 20, then next it is 28, then 36 and then 44. So these are the mid values. Now assumed mean they told us to take 28. So if this is our assumed mean, तो हम पहले deviation अगर निकालेंगे which is equal to x minus a means assumed means 4 minus 28. तो इसमें आपके पास values कैसे आएंगी, 4 minus 28 means minus 24, then you will get minus 16, minus 8, 0 and then 8 and 16. So this is our डेविएशन। बट हमें तो स्टेप डेविएशन पे आना है, तो इट मीन्स हमें एच यहाँ पर कितना आ रहा है 8, यानी एच से डिवाइड करके टी भी निकालना है। तो टी इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय एच या आई जो भी आप ले लें वो ले सकते हैं। एच मीन्स यहाँ पर आपके पास 8 है, तो व्हेन वी आर डिवाइडिंग दिस बाय 8 तो -3 -2 -1 0 1 and 2, this is the value of t. Now last is f into t. तो f into t में f और t means -30, -40, -14। अगर हमारी वैल्यूज करेक्ट है तभी आपके पास आंसर करेक्ट आ पाएगा। दिस इज 18 into 1 and then 44। तो सिग्मा एफ टी हमें कैलकुलेट करके रखना है, इट इज -22। नाउ फॉर्मूला मीन, इट इज एज्यूम्ड मीन। सबसे पहले एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ टी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ और इनटू जिस हमने एच से डिवाइड किया था उसे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। सो ए एज्यूम्ड मीन इज 28, हियर सिग्मा एफ अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज 100 प्लस सिग्मा एफ टी की वैल्यू इज -22 अपॉन 100 और एच हमारा डिफरेंस था 8, इट मीन्स 28
-22 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा, करके देख लेते हैं, -8 to 16 and 176 डिवाइडेड बाय 100, तो डेसिमल लगा देंगे 1.76, इट मीन्स माइनस किया आपने तो यू विल गेट 26.24 इज द फाइनल आंसर ऑफ मीन. Now coming to quadratic question, difference of two natural numbers. So final mean answer is 26.24. अगर उन्होंने हमें कुछ लेने के लिए नहीं कहा तो हमें स्टेप, वैसे भी आप देख लो 28 के आसपास ही आ रहा है, तो इट मीन्स दिस आंसर इज करेक्ट. नाउ डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5. सो लेट टू नेचुरल नंबर्स आर दिस. तो x माइनस वाई इज इक्वल टू आपके पास आ गया 5. नाउ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/8, तो हमें एक में नहीं छोड़ना, हमें दो में लेना है. तो कैसे लेंगे आप इसको, y की वैल्यू को ले लेते हैं यहाँ से, y इज इक्वल टू x माइनस 5, दूसरे नंबर को छोटा ले लेंगे. नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, sum of their reciprocals, so one number is x and another is y, which is in the term of x is x by x minus 5, and the sum is 3/10 only. Now taking LCM, x and x minus 5, it will become x minus 5 plus x is equal to 3/10. It will become 2x minus 5, और यहाँ पर ये 10 हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, and here it is x square minus 5x. So it will become 10x minus 50 is equal to 3x square minus 15x. So it will become 3x square minus 15 and minus 10. तो ये आपका उस तरफ ये जाएगा, तो इट मीन्स आपकी क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगी, माइनस 35x एंड माइनस 50. 3x स्क्वायर है माइनस 15x है, यहाँ से 3 to 20 आएगा, 20x and then this will become 5 into 10 50, ये तो ठीक है. सो यहाँ 15 और ये 20, इट मीन्स आपके पास यहाँ पर आ गया 35x, और 50 को जब आप उस साइड में लेंगे तो इट विल बिकम प्लस 50 इक्वल टू 0. नाउ 50 इंटू 3 मीन्स हमें 150 का लेना है, 150 के लिए फैक्टर्स लेने हैं, तो कैसे लेंगे, 150 का 5 और ये 3, तो 30 और 5, तो 3x स्क्वायर है माइनस 30x माइनस 5x plus 50 equal to 0, 3 taking common it is x minus 10, 5 taking common it is again x minus 10 equal to 0. So x is equal to 3x is common, so x is equal to 10, क्योंकि दूसरा तो फ्रैक्शन में आ रहा है और हमें फ्रैक्शन में नहीं लेना है. सो अगर हम 30 और 5, तो 3 कॉमन, x माइनस 10 माइनस 5 x माइनस 10, ठीक है. तो x इज इक्वल टू 10, क्योंकि दूसरा नंबर हमारे पास 5/3 आ रहा है जो कि हमने नहीं लेना नंबर्स में हमारे पास, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन है ना, नेचुरल नंबर्स लेने हैं हमने, तो नेचुरल, ये तो रियल नंबर में देता है. x इज इक्वल टू 10, ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया. डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 5, तो अगर हमने x ये लिया तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 5 था, तो 10 माइनस y इज इक्वल टू 5 है, इट मीन्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5. x 10 है और y 5 है. अब एक बार इस आंसर को क्रॉस चेक कर लेते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज 1/10 प्लस 1/5, कितना आ गया, इट इज 50, तो 10 एंड 5 ये आ गया, 5 एंड 10 इट मीन्स 15 अपॉन 50. अगर आप इसको कट करेंगे तो 5 3 एंड 10 3/10, तो 3/10 ही था हमारा आंसर, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 3/10. इट मीन्स अवर आंसर इज करेक्ट, x इज 10 एंड y इज इक्वल टू 5. दिस इज अवर फाइनल आंसर. So now coming to question number 7, which is related with height and distance applications of trigonometry. So here a flagpole is erected at the top of a building. The angle of elevation of the top and the foot of the flagpole. So this portion is the flagpole only. ये आपका flagpole का portion है. From a point 100 meter away on the same level as that of the foot of the building. तो हमें डायग्राम वैसे तो ड्रॉ करना पड़ेगा, बट इफ यू कैन सी तो हम ट्राइंगल डायरेक्टली ले सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम छोटा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, नीचे वाला CBA. इन ट्राइंगल CBA, let this height be of, this is building, let this height be equal to h and take this as only h, capital H, otherwise this is small h. So now in triangle CBA, h मतलब perpendicular upon base means 100 is equal to tan and angle is 31. So value of tan 31 is 0.60086. इट मीन्स अगर हम इसको राउंड फिगर कर भी देंगे तो 6009 आ जाएगा.
तो यहाँ से अगर आप h निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 उधर जाएगा तो इट विल बिकम 60.09 मीटर. So height of building आ जाएगी 60.09. Now I am taking the bigger triangle in triangle DBA. So here total height मैंने नहीं ली थी क्योंकि हमें निकालनी कैपिटल H है, तो H plus H divided by 100 is equal to angle here is 33. So tan 33 degree is the angle given. So value of tan 33 is 0.6494. So H plus H value is become 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 64.94. इट मीन्स कैपिटल H की वैल्यू हो गई 64.94 माइनस जो हमारा स्मॉल h का आया है 60.09. इट मीन्स योर वैल्यू फॉर हाइट ऑफ फ्लैगपोल इज 4.85 मीटर. बट लास्ट में आपको क्वेश्चन में बोला गया है यू गिव योर आंसर करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर ओनली. तो नियरेस्ट मीटर में इट विल बिकम 5 मीटर. अगर ये आप करेक्ट नहीं करोगे तो लास्ट में आने के बाद भी आपका 1 मार्क कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो स्टेप बाय स्टेप चेकिंग होगी. एक स्टेप यहाँ पर आ गया, एक स्टेप यहाँ पर आ जाएगा जो हमने 10 की वैल्यू करेक्टली लिया और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर लास्ट में फाइनल मीटर मिलेंगे. तभी 5 मार्क्स इसके साथ एसोसिएट किए गए हैं. Now using a graph paper, draw an ogive for the following distribution which shows a record of weight in kilograms of 100 students. तो उसको हमने सॉल्व करना है. So now while drawing an ogive, यानी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहला स्टेप इसके अंदर लेना है. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक नेक्स्ट कॉलम आपको बनाना है which is equal to 4 and 6 it will be 10, then it will become 20, then it will become 44 and then 44 and 6 it will become 26 है तो it will become 70, then it will become 87, then 95 and then 100. तो 100 मीन्स आपका n कितना आ गया, मीडियन हाइट आपका n जो आएगा वो 50, n मतलब 100 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 50th टर्म हमने ओजिव पे देखनी है. नाउ कमिंग टू द ओजिव, ये मैंने आपके लिए ड्रॉ किया, हालांकि ये भी रफ हैंड ही है. तो ये 50 से हमने कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ लिया और ये नीचे लाइन आ रही है आपके 55 के नेक्स्ट वाली रीडिंग पे, यानी 56. तो आपका मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो वेट मीन्स आपको नीचे से आपने लिखना है, तो इसके साथ जो यूनिट है वो केजी है. तो 56 kg is the median weight of students. Now percentage of students whose height is whose weight is 60 kg or more. Okay. Now 60 kg and more means हमें 60 से आगे वाला लेना है कितने स्टूडेंट्स हैं. तो हम 60 से ऊपर लाइन लेकर गए हैं, ये हमने ड्रॉ किया. 60 से ऊपर जाने के बाद ये जहां मीट कर रहा है ये 70 है. तो अब 70 से ऊपर कितने स्टूडेंट्स हैं, तो पहले हमें शो करना पड़ेगा 100 माइनस 70, इट मीन्स 30 स्टूडेंट्स हैं. बट बाई चांस डाटा बहुत अच्छा दिया है जिसमें टोटल तो हमारे पास 100 ही आ रहा है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 30 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, इट मीन्स 30% हमारा आंसर आ जाएगा फॉर बी पार्ट. तो 30% इज द आंसर फॉर बी पार्ट. मीडियन हाइट जो है वो 56 kg में है और ये हमारे पास यहाँ से आएगा. नाउ नेक्स्ट इज वेट अबव विच 20% ऑफ स्टूडेंट लाए, तो ये 30% आ गया आपका पिछला वाला. नाउ वेट अभी आपने कहाँ से देखा था, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स whose weight is 60 kg, तो 60 kg से हम गए थे ऊपर और देन हमने यहाँ से 70 से अबव वाला देखना था. नाउ वेट अबव विच 20% ऑफ स्टूडेंट लाए, तो टॉप 20% स्टूडेंट्स कितने आ गए, टॉप 20% स्टूडेंट मीन्स यहाँ पर क्योंकि 100 से है तो हमारे को इजीली दिख रहा है कि हमने 80 वाला लेना है, यानी कि 100 माइनस 80. तो 100 में से जब 80 माइनस करोगे तो आपको टॉप वाला 20% वाले लोगों का देखना है. तो 20% टॉट हमारा टोटल कहाँ पर आ रहा है, तो 80 से आप यहाँ आकर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ 60 और 65 के बीच में एग्जैक्टली ये वैल्यू बन रही है 62.5. तो वेट अबव विच 20% ऑफ स्टूडेंट्स लाई इज 62.5 और अप्रोक्सीमेटली हम इसको 63 भी ले सकते हैं क्योंकि ये भी वेट माना जाएगा, क्योंकि अगर आप ग्राफ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होते हैं तो भी ओजिव में आपको मार्क्स मिल जाते हैं. तो बट मैंने एग्जैक्टली जब ग्राफ पे ड्रॉ किया तो 60 और 65 के बीच में ही एग्जैक्टली ये लाइन लाई कर रही है. तो अकॉर्डिंग टू मी 62.5% है, बट फिर भी अगर ये लेंगे तो 63 तक वालों को भी मार्क्स मिल सकते हैं क्योंकि टॉप हमारे स्टूडेंट्स देख लो आप खुद उसी में लाई कर रहे हैं.
सो मीडियन वेट ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास 50 यहाँ पर इस एक्सिस पे आएगा, इट मीन 56 kg। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हुज वेट इज 60 kg और मोर, तो वो आपके 30% स्टूडेंट्स आ रहे हैं। वेट अबव विच 20% ऑफ द स्टूडेंट्स लाई, तो टॉप 20% ऑफ द स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं इस वेट से अबव, यानी 62.5 से अबव विच, तो 62.5 को आगे लेके जाएंगे, तो 62.5 और मैंने अप्रोक्सीमेटली लिख दिया कि 63 kg लिखने पर भी आपको आई थिंक मार्क्स मिल जाएंगे। With this, I conclude my today's video. For the remaining questions, I will make the last part of this video ICSE Class 10 Mathematics paper.